Hello students. So today we are going to start new chapter of geography, book Fundamentals of Human Geography and chapter 4. The name of the chapter is Primary Activities. So we have covered already 3 chapters previously. Now we have moved to the chapter 4. Okay. This is separate unit, so we are going to start this chapter. Now, before starting of this chapter, let me tell you all the things which are related and there in this chapter. Okay, so primary activity is not a strange word for you. You already know a little bit about it. Okay, what are the things which you need to follow here? The topics are hunting and gathering, pastoralism. In pastoralism, you are having nomadic herding, commercial livestock rearing. Then we are having topic of agriculture. These are all the types of primary activities which are performed all over the world. So we are reading that only. Okay. Under the agriculture, subsistence agriculture, primitive subsistence agriculture. Okay. Intensive subsistence. Intensive subsistence is having the 2 types here. Okay. The next, plantation agriculture, extensive commercial grain cultivation. This is all types of agriculture only. Then mixed farming, dairy farming, okay, Mediterranean agriculture, viticulture, okay, market gardening and horticulture, truck farming, then cooperative farming, then collective farming, and the last one is mining. So mining is also having some methods and some types that we are going to learn. That is the last topic. So before proceeding to this chapter, let me tell you that how you are going to remember all those things. Okay, first you need to look on the key terms here which I have just told you right now. Okay, like hunting and gathering, you need to know the what it is all about, hunting gathering, and then this is all our primary activity only. Hunting and gathering is the okay. So just remember one thing, that you are going to know about this topic first as a primary activity. Okay, now there is also one primary activity, that is pastoralism. Okay, pastoralism is one topic. Then what are the types of pastoralism, if they are asking, then it is under it will come nomadic herding, number 1, and the next commercial livestock rearing, number 2. Okay, so remember जो जिसमें भी जो भी टॉपिक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो एक टॉपिक है और उसके सब टॉपिक उसके अंदर में है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पेस्टोलिज्म एक टाइप का प्राइमरी एक्टिविटी है और उसके कितने टाइप्स हैं, तो आपको ये याद रखना है. इसके टाइप्स में नोमैडिक हर्डिंग है और एक कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग है. ठीक है, उसके बाद आता है एक प्राइमरी एक्टिविटी जो कि है एग्रीकल्चर. अब उसके नीचे जो आपको ये तो बोल्ड लेटर्स में है और जो स्मॉल लेटर्स में है वो सारे क्या हैं, इसके टाइप्स हैं, जिस जो आपको ये सारी चीज़ें जो आपको इसमें लर्न करनी है पूरा. और एक एग्रीकल्चर क्योंकि एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है, इसलिए देखो वो यहाँ पूरा काफ़ी ज़्यादा तरीके से कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग तक लास्ट टॉपिक एंड टाइप्स तक दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका माइनिंग. ये भी एक टाइप का क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है. फिर उसके अंडर में जो भी डिटेल्स है वो हम पढ़ेंगे. सो डू नॉट बी कंफ्यूज कि ये कहाँ से आया और इस तरीके से क्यों पूछा जा रहा है. ठीक है, so every topic is having their subtypes and types. Okay, now we start the chapter by the introduction. Human activities which generate income are known as economic activities. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यही होता है. इकोनॉमिक मतलब समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द मनी. सो कोई भी एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो रहा है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, टर्शरी एक्टिविटीज़ में एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ पे, जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है ये इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वाला जो है सेकेंडरी टर्शरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो क्या है, जो एक ऐसी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहती है इन्वायरमेंट के ऊपर. मतलब इसका सीधा मतलब है इन्वायरमेंट से. ये कोई मशीन का यूज़ करके और मतलब कोई सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसका काम नहीं है. इसका काम है बेसिक काम. ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है कि कैसे हम अर्थ सर्फेस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सके, जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो नेचुरली अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, उसको कैसे यूज़ में लाया जा सके. दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी. ठीक है, इसीलिए इस प्राइमरी एक्टिविटी में वही जो हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल में, वही एग्जांपल दिया हुआ है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग है, पैस्टोरलिज्म एक्टिविटीज़ है, पैस्टोरल एक्टिविटीज़ इसको बोलते हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं. अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये एक नया टर्म है, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं और वही काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेड
कॉलर वर्कर्स। इसी तरीके से सेकेंडरी में जाओगे तो ब्लू कॉलर वर्कर्स, इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग वर्कर्स का कलर है जो उनको इंडिकेट करता है, ठीक है। अब रेड कॉलर वर्कर्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर काम करते हैं, मतलब घर में या ऑफिस में, ठीक है, नहीं करते हैं, या कोई भी एक ऐसी जगह पे नहीं करते हैं, फैक्ट्री के अंदर नहीं करते हैं, इनको बाहर निकलना ही पड़ता है, ठीक है। अब फर्स्ट आते हैं टॉपिक पे, दैट इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग आपको बहुत पहले से पता है, अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा कि हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है। हंटिंग का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स विच आर हंटेड, ठीक है, एंड द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। यानी कि हंटिंग का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स को वो हंट कर रहे हैं या उनका शिकार कर रहे हैं और उसको यूज़ में ला रहे हैं, या फिर ईटेबल्स में ला रहे हैं, या कोई चीज़ उनका पार्ट्स यूज़ करना है उसके लिए ला रहे हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देम। और एडिबल प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको खाने पीने में या यूज़ किया जा सके डेली बेसिस पे, ठीक है। तो वो एडिबल प्लांट्स जो होते हैं वो गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं फॉरेस्ट से, जो कि फॉरेस्ट कहाँ पे है, आसपास एरिया, विसिनिटी मतलब आसपास की जगहों से। तो हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। हंटिंग मीन्स हंटिंग ऑफ एनिमल्स विच आर हंटेड, और गैदरिंग मतलब कोई भी एडिबल जो खाने लायक प्लांट हो या यूज़ करने लायक हो उसे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आसपास के एरिया से या फॉरेस्ट से। प्रिमिटिव सोसाइटी ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स क्योंकि वो तो फ्रीली पाए जाते हैं, पेट एनिमल्स तो होते नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर उन्हीं पे डिपेंडेड होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं और सबसे ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग पे ही डिपेंडेड होते हैं, ठीक है। उनको और कोई चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार मूव करना होता है, और वो क्या होता है कि वो उस मूव भी करना होता है, प्लस जो उनका क्लाइमेट होता है वो सूटेबल नहीं होता है कि एग्रीकल्चर किया जा सके। तो वेरी कोल्ड और एक वेरी हॉट वाले क्लाइमेट में ज़्यादा क्रॉप्स नहीं हो पाएंगे, सो दे सर्वाइव ऑन हंटिंग ओनली, ओके। Now, the people in the coastal areas still catch fish, though fishing has experienced modernization due to technological progress, ठीक है। वही हम देखेंगे कि जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग में अभी भी लोग क्या करते हैं, फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं कोस्टल एरियाज़ में, जो कि नदी के किनारे वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फिशिंग एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। मतलब फिशिंग वो वर्क करते हैं, दे कैच द फिश एंड देन दो फिशिंग हैज़ एक्सपीरियंस, जबकि फ़िशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई। मतलब अब अभी जो लार्ज स्केल में आप फिशिंग एक्टिविटीज़ दे, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन से भी क्या होता है, फ़िशिंग की जाती है, ठीक है। वो एक मेथड है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश को कैप्चर किया जा सके, तो तभी भी लोग फिशिंग कर ही रहे हैं। मैनी स्पीसीज़ नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग और पोचिंग। तो हंटिंग एंड गैदरिंग जब हो रही है तो ये क्या है, नेचुरल तरीके से हो रही है और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हो रही है। तो पहले जब लोग करते थे हंटिंग एंड गैदरिंग, तो वो केवल अपने सब्सिस्टेंस यानी खुद के यूज़ के लिए वो हमेशा यूज़ करते थे, और वो हमेशा उस पर काम करते थे, और उतने ही चीज़ें वो क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो इतना ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं, जो क्या हो जाता है उस अनलिमिटेड वे में, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड तरीके से वो सारी चीज़ों का रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो वो स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा मतलब बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं या इंडेंजर्ड हो गए, यानी कि वो ख़त्म होने के जस्ट किनारे पे हैं, ठीक है। नाउ अर्ली हंटर्स यूज़ प्रिमिटिव टूल्स, पहले के लोग स्टोन्स यूज़ करते थे, ट्विग्स यूज़ करते थे, एरो यूज़ करते थे, तीर वगैरह यूज़ करते थे, जिससे कि एनिमल्स की किलिंग हो सके, ठीक है। एंड दिस वाज लिमिटेड, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। इसलिए क्या होता था कि बहुत ही ओल्ड टाइप के वो टूल्स यूज़ करते थे, इसलिए एनिमल्स जो थे वो मतलब ज़्यादा अमाउंट में किल नहीं होते थे, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होती थी, ठीक है। बेसिकली पहले के लोग ज़्यादातर इसी तरीके से करते थे, क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि सारे रिसोर्सेज को एक साथ यूज़ करना वो शुरू करते, ठीक है। सो वाई हैज़ हंटिंग बीन बैंड इन इंडिया, अब इंडिया में हंटिंग क्यों बैन हुआ, ये तो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लो क्या हुआ। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डर इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। गैदरिंग एंड हंटिंग क्या है, सबसे ज़्यादा पुराना ज़्यादातर काम किए जाने वाले में से है, ठीक है। तो दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट वेरिएशन, मतलब अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है, दोनों चीज़ें, गैदरिंग हंटिंग दोनों। गैदरिंग का मतलब क्या होता है, गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। गैदरिंग उसी जगह में प्रैक्टिस की जा सकती है जिसका क्लाइमेट काफ़ी हार्श है, मतलब आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से। It often involves primitive societies who extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing। ज़्यादातर गैदरिंग तभी होती है जहाँ पे उनको एक्चुअली में मतलब ज़रूरत है, मतलब ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही वो यूज़ करके क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं। ये जो एक्टिविटी है इसमें काफ़ी स्मॉल टाइप की कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब काफ़ी कम खर्च होते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको सीधे मतलब जो भी पर्सन है वो हंटिंग या गैदरिंग में इन्वॉल्व है तो उसे कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कोई मशीन लेके तो जाना नहीं पड़ेगा, एंड उनको काफ़ी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी यूज़ करना होगा, ठीक है। द इल्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। इल्ड पर पर्सन यानी कि एक पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा उसमें से ऑब्टेन कर रहा है, मतलब अगर कोई गैदरिंग के लिए जा रहा है, हंटिंग के लिए जा रहा है, उसका इल्ड मतलब वहाँ से ऑब्टेन जो कर रहा है वो एक पर पर्सन का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम है, ठीक है।
या बहुत ही ज़्यादा, अगर है भी तो बहुत ही कम मात्रा में है या बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। और सरप्लस तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होगा। सरप्लस मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसका एडिशन मतलब और भी उससे ज़्यादा है जो आपने बैकअप में रखा हुआ है, तो उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नदर्न कनाडा। इसे आप अंडरलाइन कर लो कि ये कौन कौन से एरियाज़ में गैदरिंग ज़्यादातर परफॉर्म की जाती है। कनाडा में होती है, नदर्न यूरेशिया में होती है, ठीक है। नदर्न यूरेशिया मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एशिया एंड यूरोप। सदर्न चिले जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वहाँ पे होती है। सेकंड, लो लैटिट्यूड्स, एक तो हाई लैटिट्यूड है मतलब एकदम अपर वाले में, यानी कि आप देख लो अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ, 40 से लेके 66.5 डिग्री साउथ। और एक लो लैटिट्यूड में जहाँ पे अमेजॉन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है। अफ्रीका में भी आप देखोगे सब बहुत ज़्यादा ट्राइब्स वगैरह होते हैं जो हंटिंग एंड गैदरिंग पे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वाले एरिया में, और साउथ ईस्टर्न एशिया के इंटीरियर पार्ट्स में, इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है। तो यू विल फाइंड दीज गैदरिंग एंड हंटिंग आर दिस गैदरिंग, ओनली गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन दीज एरियाज। इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड। आजकल के टाइम पे ये गैदरिंग जो होती है वो मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट को देख करके फोकस किया जाता है और उसे कमर्शियली बना दिया गया है। मतलब कमर्शियल जब भी वर्ड आ रहा है तो याद रखना मनी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, barks of trees and medicinal plants, and after simple processing sell the products in the market. They use various parts of the plants. For example, the bark is used for quinine, tannin extract, and cork. Leaves सप्लाई मटेरियल्स फॉर बेवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, थैच एंड फैब्रिक्स, ठीक है। नट्स फॉर फूड। अब देखो क्या चीज़ दिया हुआ है कि अब जो गैदरिंग हो रही है इस टाइम पे 21st सेंचुरी में वो हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड है। कमर्शियल मतलब एक और चीज़ है प्रॉफिट ओरिएंटेड, याद रखना, ठीक है। तो वो प्लांट्स के पार्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो कोई भी रस्सी जैसी कोई चीज़ बना सके, ठीक है, या उसे टैनिंग यानी कोई गम जैसी कोई चीज़ बनाए वो, जिससे कि वो कोई भी मटेरियल को वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसा लीव्स भी अगर गैदर कर रहे हैं तो वो बेवरेज के लिए मतलब टी या कॉफ़ी के लिए यूज़ हो, ड्रग्स मतलब मेडिसिन वगैरह के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइबर मतलब जो धागा वगैरह होता है उसके लिए, ठीक है। थैच मतलब जो ब्राउन कलर के जो हस्क टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं उससे, या फैब्रिक वगैरह बनाना है मतलब कॉटन क्लोथ्स वगैरह, ठीक है। नट्स फॉर फूड, नट्स वगैरह, कैश्यू नट, वॉलनट, ये सारी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड आइटम्स के लिए। ऑयल्स एंड ऑयल्स, फूड के लिए, ऑयल्स के लिए। ट्री ट्रंक यील्ड रबर, बलाटा, गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट के नाम हैं कि अगर ये ट्री ट्रंक यूज़ हो रहे हैं ये सारे कामों में, ठीक है। तो गैदरिंग इज़ नॉट जस्ट अब कि हाँ सिर्फ अपने तक ही सीमित है, बल्कि ये मार्केट ओरिएंटेड भी है। अब एक चीज़ देखो दिया हुआ है, डू यू नो में, ये क्वेश्चन है ऐसे 1 मार्क या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्युइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज कॉर्न। उसका नाम क्या है? जैसे जो च्युइंगम आप खाते हो वो देखो उसका जब फ्लेवर चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड शिकल, ठीक है, शिचल बोल देंगे इसको, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ जपोटा ट्री, मतलब ये याद रखना है कि इसे बोलते हैं शिकल एंड मिल्की जूस ऑफ, किससे बनता है ये? जपोटा ट्री से, जपोटा ट्री याद रखना है नाम, ठीक है। गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। अब एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है कि जो गैदरिंग है ये इतनी लार्ज स्केल में नहीं है, तो ग्लोबल लेवल में इसके चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब ग्लोबल लेवल में ये काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि लिमिटेड है ये। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, मतलब इसमें जो क्या होता है कि जो गैदरिंग होती है इसमें जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो वर्ल्ड लेवल से कम्पीट नहीं कर सकते हैं, ना मैच कर सकते हैं। मोर ओवर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइजेस हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदरर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके अलावा और चीज़ है कि जो सिंथेटिक फाइबर है, जैसे मान लो कॉटन है, तो अगर आप कोई बोलेगा कि ये 100% कॉटन क्लोथ है तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो वो मतलब उसमें कोई ना कोई चीज़ मिली हुई होती है जिससे कि वो प्योर कॉटन नहीं होता है। अगर प्योर कॉटन होगा तो इट विल लुक वेरी वेरी रफ, ठीक है, लेकिन रफ तो वो दिखता नहीं है जो हम या आप पहनते हो, तो वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ होता है। सिंथेटिक प्रोडक्ट का एक खासियत ये है कि ये एक बेटर क्वालिटी दिखाई देगा, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लीन, और सब उससे बड़ी बात ये है कि ये काफ़ी कम प्राइस में आएगा, क्योंकि क्वालिटी नहीं है तो प्राइस उसके कम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो बिल्कुल 100% कॉटन होगा वो रफ भी होगा और उसका कलर फेड भी होगा और वो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, तो वो तो सबके बस की खरीदने की बात भी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में पैस्टोरलिज्म, ठीक है। अब पैस्टोरलिज्म का क्या मतलब होता है देखते हैं। पैस्टोरल का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, एनिमल और कैटल। एट सम स्टेज इन हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज़ एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को पता चला हिस्टोरिकल टाइम से कि हंटिंग जो है एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, मतलब लार्ज स्केल में हंटिंग किए जा रहे हैं और जब यूज़ हो रहा है उसके बाद से उनको रीग्रो कैसे करना है या वापस से कैसे इन्वायरमेंट में लाना है उसका कोई चीज़ ही नहीं हो रही है, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो उन्हें लगा कि हम एक तो जहाँ ये एनिमल्स होते हैं वहाँ हमें जाना पड़ता है
और अगर हम इनकी किलिंग करते हैं फिर वहाँ जाके फिर वहाँ से कहीं और जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम इनका सस्टेनेबल तरीके से तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो रहे हैं और हम इनके पीछे जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इन्हें क्या कर दिया जाए, डोमेस्टिकेशन कर दिया जाए, मतलब पालन पोषण की जाए इनकी। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने घर पे एज अ पेट डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। यानी कि अब आप हमारे पास ही रहोगे, और जब अब हमारे पास रहोगे, कोई एनिमल को अगर कोई पाल रहा है और अच्छे से रख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ से हटेगा नहीं, और प्लस वो एनिमल्स उससे उसको काफ़ी फ़ायदे होंगे, और प्लस वो मल्टीप्लाई भी होता रहेगा, ठीक है, due to reproduction. Now, depending on the geographical factors and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level, ठीक है। अब क्या है कि किसी किसी जगह पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है तो लोग अभी भी नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, यानी कि इधर उधर जाते हैं, घूम घूम के एनिमल को लेके साथ में जाते हैं और ख़ुद के लिए ही वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, उस एनिमल के प्रोडक्ट को या उस एनिमल के कोई भी बॉडी पार्ट्स या मटेरियल को, ठीक है। वही कुछ जगह पे पेस्टोरलिज्म इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो कमर्शियल लेवल पे जा चुका है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, ठीक है। अब हम पहले आते हैं नोमैडिक हर्डिंग पे, जो कि पेस्टोरलिज्म का पहला टाइप है। नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म इज़ अ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड है, सबसिस्टेंस एक्टिविटी मतलब खुद के लिए ही काम किया जा रहा है, कोई प्रॉफिट वगैरह इसमें नहीं दिखे है ज़्यादा, ठीक है। इन विच हर्डर्स कौन होते हैं, जो गाय मतलब कैटल्स वगैरह जो होते हैं उनको चराते हैं, ठीक है। दे रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये एनिमल पे डिपेंडेड होते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ उनको चाहिए, कोई भी अपने मतलब कोई भी अपने बेनिफिट्स को उनको फुलफिल करना है तो उनको यूज़ करते हैं और उन्हीं पे डिपेंडेड है, रिलाइंग है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने लाइफ स्टॉक को लेकर। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, याद रखना, लिख लो वहाँ पे अंडरलाइन करके, लाइफ स्टॉक मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर। यानी कि वो उस जगह पे अपने लाइफ स्टॉक को लेकर के मूव करते हैं जिस जगह वहाँ उनको दिखता है कि वो उनकी कितने नंबर में है वो, और उस पेस्चर यानी कि जो जहाँ पे वो उसको चराने लेके जा रहे हैं उस जगह में है भी कि नहीं, मतलब वहाँ पे ग्रासेस हैं भी कि नहीं, ठीक है, और वाटर अवेलेबल है कि नहीं, तभी तो जाएंगे। डेजर्ट एरिया में थोड़ी लेके चले जाएंगे एनिमल्स को हर्डिंग करने के लिए। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्युपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। हर एक नोमैडिक कम्युनिटी जो होता है उसको अपना एक डेजिग्नेटेड एरिया अपने आप बना के रखता है कि हाँ ये हमारा ट्रेडिशनली बहुत जनरेशन से चलता आ रहा है, हम इसी जगह पे जाते हैं और यहाँ पे जो पेस्चर्स है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैटल्स को लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको ग्रेजिंग जो होती है वो कराते हैं, ठीक है। नाउ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी जो 0 डिग्री अफ्रीका के जो नॉर्थन एरिया जो है वो दे कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। जो कैटल होते हैं, भेड़ बकरियाँ जिनको बोलते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका में। वैसे ही सहारा और एशियाटिक डेजर्ट शिप, गोट्स एंड कैमल्स आर रेयर, ठीक है। तो वहीं पे क्या होते हैं, जैसे सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स में शिप्स हो गए, ठीक है। सहारा डेजर्ट आपको पता ही है, एशियाटिक डेजर्ट जैसे अरेबियन डेजर्ट वगैरह हो गए, तो शिप को गोट्स एंड कैमल्स दे आर रेयर्ड, मतलब जहाँ जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको वो क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं अपने हिसाब से। इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज। अब माउंटेनियस एरियाज तिब्बत कहाँ है, तिब्बत तो आपको पता ही है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड एंडीज कहाँ पे है, वेयर इज़ द एंडीज, इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। नाउ याक एंड इलामाज जो शिप की तरह दिखाई देते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उनसे ब्राइट एंड ज़्यादा टॉल होते हैं, ठीक है। एंड इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज रेंडियर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स। जबकि ये वाला रेंडियर आपको पता ही है कि जो सेंटा क्लॉज अपने जो अपने साथ में लेकर के आता है लोगों को, ठीक है। तो वो जो एनिमल होते हैं जिनके साथ वो बैठ के आता है वो क्या होते हैं, रेंडियर्स, ठीक है। नाउ pastoral nomadism is associated with 3 important regions। 3 important regions से ये connected है pastoral nomadism, यानी कि pastoral nomadism। The core region extends from the Atlantic shores of North Africa eastwards across the Arabian Peninsula into the Mongolia and Central China, ठीक है, याद रखना, पूरा अंडरलाइन कर लो। दूसरा रीजन ये है, एक्सटेंड्स ओवर द तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, मतलब कि यूरेशिया कहाँ पे है, जैसे यूरोप और एशिया का कॉम्बिनेशन है, और तुंद्रा रीजन कौन सा है, जो बिल्कुल नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये सेकंड रीजन है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन ये है। सो यहाँ ये वाले रीजन्स जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ये वैसे एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग है, मैप में दिखाया भी है,
ठीक है। तो ये सारी, ये देखो यहाँ पे सारा डेजर्ट से लेके फिर इसके थोड़ा ईस्ट में जाओगे तो सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया कवर करके रखा है, ठीक है। उसके बाद और आगे जाओगे चाइना, मंगोलिया तक है पूरा, तिब्बत एरिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे तुंद्रा रीजन है, ये दूसरा रीजन है, और ये यहाँ पे साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ नोमैडिक हर्डिंग के हैं, ठीक है। नाउ ओके, ऑल्सो देर इज़ ऑल्सो वन प्लेस दैट इज़ मेडागास्कर, ये मेडागास्कर आइलैंड है। तो यहाँ पे भी क्या है, इस एरिया में भी जो वेस्टर्न वाला मेडागास्कर एरिया, यहाँ पे भी नोमैडिक हर्डिंग काफ़ी होती है। मूवमेंट इन सर्च ऑफ पेस्चर इज अंडरटेकन ईदर ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज और वर्टिकल फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनियस रीजन। अगर जो कहीं पे माउंटेनियस एरियाज़ है तो वहाँ पे तो अप एंड डाउन, यानी कि अप हिल से लेकर के डाउन हिल तक आते जाते वर्टिकली सेक्शन में मूवमेंट होती है पेस्चर की लोगों के साथ जो वहाँ पे लोग रहते हैं। और अगर तो प्लेन एरिया है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टली होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट वो लोग मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, एक टर्म दिया गया है, उस टर्म का नाम है ट्रांसह्यूमेंस, इसे अंडरलाइन कर लो। और ट्रांसह्यूमेंस कौन होते हैं ये भी आपको जानना है, ठीक है। देखो ट्रांसह्यूमेंस क्या होते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर लो। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर्स ऑन माउंटेन्स during summer and again from mountain pastures to plain areas during winters is known as transhumance। याद रखना ट्रांसह्यूमेंस कौन होते हैं। ट्रांसह्यूमेंस वो होते हैं कि जैसे जिस टाइम पे समर सीज़न है, याद रखना जिस टाइम पे समर सीज़न होता है वो हमेशा क्या करते हैं, प्लेन एरिया से माउंटेनियस एरियाज़ की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जब समर सीज़न चल रहा होता है अपने साथ पेस्चर को, मतलब कैटल वगैरह को लेके। और क्या होता है कि जब विंटर सीज़न आ जाता है तो आपको तो पता है, हमने 11th में क्लास में पढ़ाई है कि हाई एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड कंडीशन, टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लो। तो विंटर वो सीज़न में क्या करेंगे, वो माउंटेनियस एरिया से प्लेन एरियाज में आ जाएंगे। तो यही जो इनका मूवमेंट जो चलता रहता है समर सीज़न और विंटर सीज़न में, अप एंड डाउन, यानी माउंटेन टू प्लेन एंड प्लेन टू माउंटेन, देन इट इज़ नोन एज द ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है। इन माउंटेन रीजन सच एज हिमालयाज़ में कुछ कुछ ट्राइब्स के नाम है, याद रखना क्योंकि MCQ में आ सकता है या डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कौन से ट्राइब्स के नाम बताओ। गुज्जर्स, बकरवाल्स, गड्डीज एंड भूतियाज, दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन्स इन समर एंड टू द प्लेन फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड पेस्चर इन विंटर। तो ये कुछ ट्राइब्स के नाम बताए गए हैं, याद रखना इसको। या फिर G2B2 ऐसे करके याद रख लेना। G2B2 मतलब G का 2 हैं, गुज्जर एंड गड्डीज, एंड B2 मतलब ये भी 2 हैं, बकरवाल्स एंड भूतियास, G2B2, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांसह्यूमेंस वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, प्लेन टू माउंटेन एंड माउंटेन टू प्लेन। नाउ सिमिलरली इन द तुंद्रा रीजन, या तुंद्रा रीजन याद रखना कि ये रशिया के ऊपर वाला जो जगह है उसे तुंद्रा रीजन बोलते हैं, जहाँ पे आर्कटिक है, ठीक है। तो सिमिलरली इन द तुंद्रा रीजन द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ इन द समर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर, ठीक है। मतलब यही तुंद्रा रीजन में वही बोला गया है, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ का मतलब यही है कि साउथ यानी कि अगर ये वाला एरिया है साउथ वाला एरिया, तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे वो, ठीक है, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे ड्यूरिंग द समर टाइम पीरियड, ठीक है। और वही वो विंटर टाइम पीरियड में कैसे मूव करेंगे, वो नॉर्थ से यहाँ पे ऑलरेडी थे और साउथ में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाला हो गया इनका। द नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड द एरियाज ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। तो अब नोमैडिक हर्डिंग में लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट तो दिखाई देती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने लिए ही काम कर रहे हैं, पहले ही बता दिया, सबसिस्टेंस है एंड ओल्ड प्रैक्टिस है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है अब काफ़ी कम हो गई हैं, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैस्टोरल नोमैड्स वाई देयर परसेंटेज और देयर अमाउंट इज डिक्रीजिंग। सो ये रीजंस आप लिखोगे, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, मतलब लोगों ने अपनी अपनी कंट्री में नेशन बना लिया है, ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं भी मूव करेगा, सबका अपना पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, सबके अपने पॉलिटिकल एरियाज़ हैं, तो वो लोग ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप मूव ना करो, अपनी सेटल लाइफ जियो, ठीक है। न्यू सेटलमेंट्स प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग तरीके से सारे अपने कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग तरीके से अपना सेटलमेंट प्लान जो है वो फ्रेम करते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये सारे ट्राइब्स यहाँ पे, जैसे ट्रांसह्यूमेंस जो है यहाँ पे आए और ये सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे। ये तो बहुत पुराना था, प्लस इसमें कुछ मिलता भी नहीं है, फालतू में इन्होंने एरिया को कवर करके रखा है, तो हम अपना नया सेटलमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ये पैस्टोरलिज्म का दूसरा टाइप है, ठीक है। अब जहाँ पे वर्ड कमर्शियल आ गया मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड है, याद रखना, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब भी बताया मैंने, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग जो अभी आपने पढ़ाई है तो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज क्या है, मतलब पुराने तरीके से वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें तो सब सही लग रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है और कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब यहाँ पे आपको कैपिटल जो है वो स्प्लर्ज करने पड़ेंगे, कैपिटल इज रिक्वायर्ड हियर। कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग इज एसेंशियल एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रैंचेस। जो बड़े बड़े जो देश जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे ये कल्चर कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग यानी कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो होती है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल कैटल्स को लेके जा रहे थे और चरा रहे थे और वहाँ से उनके जो डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे थे, फर मिल रहा था, बॉडी बोन्स जो हैं वो यूज़ हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं लेकिन लार्ज स्केल में करते हैं।
परमानेंट रैंचेस पे करते हैं, मतलब घूम घूम के नहीं जाना है उन्हें, एक एरिया डेजिग्नेटेड कर दिया, वहाँ पे वो कैटल्स लेके जाएंगे और वहाँ पे उनको उनके रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें होंगी मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब दे विल डू द ग्रेजिंग एक्टिविटी देयर। दीज रेंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स। अलग अलग तरीके से पार्सल्स में डिवाइडेड होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एक खुला मैदान छोड़ दिया, डिवाइडेड है प्रॉपरली कि हाँ कितना कैटल्स को कितना रिक्वायरमेंट होगा ग्रीजिंग के लिए, विच आर फेंस्ड टू रेगुलेट द ग्रीजिंग। देखो फेंस भी किया गया है इसे, मतलब बैरिकेडिंग भी की गई है, बाउंड्रीज बनाए गए हैं कि इतने एरियाज़ में इतने ग्रेजिंग की जा सकती है। व्हेन द ग्रास ऑफ वन पार्सल इज ग्रेज्ड एनिमल्स आर मूव टू अनदर पार्सल। अब एक एरिया जो है, एक पर्टिकुलर बॉक्स जो है या एग्रीकल्चर का जो एरिया लैंड है वो कंप्लीट हो गया, फिर वो दूसरे वाले एरिया में जाते हैं, दूसरे पार्सल में जाते हैं, मतलब दूसरे कॉलम में जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, ये नहीं कि कहीं भी मुँह उठा के चले गए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ पेस्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पेस्चर। अब जितना वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड उसको अलाउ कर रहा है उतने कैटल्स ही वो रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि रखे जा रहे हैं एनिमल्स, वहाँ पे कैटल को, लाइफ स्टॉक को उन्होंने डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ है, वो मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं, नहीं, वो फील्ड के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। दिस इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। अब ये भी एक कंडीशन है कि यहाँ पे केवल एक ही टाइप के एनिमल की रियरिंग होती है। रियरिंग मतलब वही उनका पालन पोषण और ग्रेजिंग वगैरह, ठीक है, जिससे कि उन्हें कुछ कुछ चीज़ें उनसे ऑब्टेन हो पाए। अब एनिमल से क्या क्या चीज़ ऑब्टेन हो सकती है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक ही टाइप के एनिमल, जैसे मान लो कि बफेलो हैं, ठीक है, तो बफेलोज ही वो वहाँ पे उन्हीं को ग्रेज करवाएंगे। जैसे मान लो शिप हैं तो पूरे खाली शिप्स ही दिखाई देंगे। वही नोमैडिक हर्डिंग में ऐसा नहीं था, नोमैडिक हर्डिंग में मिक्स एनिमल्स जो थे वो अलाउ थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड शिप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। शिप हो गया, कैटल हो गया, कैटल मतलब बफेलो वगैरह हो गए या काऊ हो गए, गोट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, दिया। नाउ प्रोडक्ट्स सच एज मीट, वूल, हाइड्स एंड स्किन आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। देखो इसका क्या है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये कमर्शियल यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है। इसलिए जो भी इन सारे एनिमल्स से इनको ऑब्टेन होता है, जैसे मीट हो गया, वूल हो गया, हाइड्स मतलब क्या होता है, जो उनके वो हैं जिनको बोलते हैं स्किन, ठीक है। हाइट्स मतलब एक्चुअली में ये क्या है कि जिससे बैग वगैरह बनते हैं, ठीक है, लेदर बैग्स बनते हैं, बेल्ट बन गया वो सारे, और स्किन तो है ही, ठीक है, उसके स्किन जो हैं वो तो होते ही हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और पैक किया जाता है साइंटिफिकली, और वो वर्ल्ड मार्केट में क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। अब उससे उनको प्रॉफिट मिलेगा। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचिंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस में किया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को कोई भी एनिमल लेकर के आ गए और हंटिंग ग्रेजिंग वगैरह शुरू कर दी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मैकेनाइज्ड होता है और ये साइंटिफिक तरीके से ही इनको रखते हैं वो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ओके, द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। तो जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, ये पूरा हम पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देखो आपको ऐसे पूछेगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पैस्टोरलिज्म, ठीक है। तो ये पूछेगा, तो इसमें से आपको क्या करना है, जो जो भी हमने पढ़ा, जो जो भी नोमैडिक हर्डिंग से आपको डिफरेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जैसे मान लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंटेंसिव, मोर ऑर्गेनाइज्ड, पार्सल्स आर डेजिग्नेटेड हियर, दिस इज डिपेंडेड ऑन कैरिंग कैपेसिटी, रियरिंग ऑफ एनिमल इज ऑन साइंटिफिक बेसिस, ये सारी चीज़ें इसके कैरेक्टरिस्टिक है। वन पॉइंट हमें आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, ब्रीडिंग यानी कि उनकी कैसी ग्रोथ हो रही है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, एक जनरेशन तो जो था इस एनिमल का तो काफ़ी अच्छा था, तो दूसरा जनरेशन भी सेम सही होना चाहिए, मतलब हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, जो उनको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे पाए, जेनेटिकली इंप्रूव करना है उनको। डिजीज़ कंट्रोल, ठीक है, डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अगर एनिमल्स में तो काफ़ी वाइल्ड फायर की तरह फैलता है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ केयर, एनिमल्स का हेल्थ पे ध्यान देना। अब ये किसके जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक कौन कौन सी कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होता है, तो कौन कौन से, देखो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्योंकि न्यूजीलैंड तो सिर्फ इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट और सबसे बेस्ट वूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो दिस न्यूजीलैंड इज़ हैविंग वेरी लाइक प्रिविलेज्ड कि यहाँ पे बहुत सारे कैटल रियरिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि साथ में सटा हुआ है तो वो है ही। अर्जेंटीना इज़ देयर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उरुग्वे इज़ देयर, यूएसए इज़ देयर, दे आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड। ये हमने पहला प्राइमरी एक्टिविटी पैस्टोरलिज्म का था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर भी एक टाइप ऑफ क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, याद रखना, पहले वाले में सिर्फ 2 ही थे, हंटिंग गैदरिंग में बिल्कुल नहीं था, एग्रीकल्चर में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम पढ़ेंगे इसे एक एक करके, ठीक है। एग्रीकल्चर जो होता है वो अलग अलग तरीके से मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है।
जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम्स भी इसमें यूज़ होते हैं। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। जो जैसा मेथड यूज़ करोगे वैसे वैसे टाइप ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होंगे। एंड लाइव स्टॉक रेस्ड, अब एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक भी होते हैं क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो डेयरी में तो लाइव स्टॉक आएंगे ही आएंगे। नाउ कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये याद रखना कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक पहला टाइप है एग्रीकल्चर का। अब ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसके अंडर में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ये 1.1 यानी कि इसका ये सब पार्ट है, ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है ये वाला 1.2 सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का ये दूसरा पार्ट है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इसके भी सब पॉइंट टाइप्स हैं। जैसे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो हैं, जैसे हम बोलेंगे इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एग्रीकल्चर, तो 1.2.1 दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 1.2.2 दैट इज़ सेकेंड। मतलब इसका ये टाइप है, सब टाइप है, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये तो क्या है आपका पहला वाला तो हम सबसिस्टेंस ही पढ़े थे, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका दूसरा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये पहला यही था अभी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पढ़ते हैं सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि खुद के लिए वो फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन, जो आसपास के क्लाइमेटिक और वेदर को देख कर ही किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो ये भी इसके सब टाइप है। पहला देखेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये क्या है, काफ़ी पुराने टाइप का कल्टीवेशन सिस्टम है। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में, अफ्रीका में, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में होते हैं, ठीक है। ये देखो ये एरियाज़ ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के ये एरियाज़ हैं जो ग्रे किया गया है, बुक में देख लेना। एरियाज़ ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी ये सारे एरियाज़ हैं, ये भी आप देखोगे, ठीक है। वैसे मैप का हम सेपरेटली एकदम एंड में, पूरा सिलेबस एंड होने के बाद उसकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ओके, नाउ द वेजिटेशन इज़ यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर। अब देखो क्या होता है, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। किसको, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्म एग्रीकल्चर को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, हमेशा इसमें क्या किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ही क्या होता है कि जनरली क्या किया जाता है कि एक पीस ऑफ लैंड एरिया है, ठीक है, उसको पहले उन्होंने जा करके आग लगा दी। मतलब उसको एक एरिया देखा उन्होंने, हाँ ये फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, घास फूस होगा, जो भी होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, पहले उस वेजिटेशन को क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, फायर करके उसको आग लगा देंगे, ठीक है, जंगल में आग लगा देना समझ लो। एंड द एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब जो उस फायर के बाद जो एशेज वगैरह, राख वगैरह जो निकलेंगे वो वहीं सेटल डाउन हो जाएंगे और वो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना देंगे, ठीक है। तो ये उनका मानना है। अब जब उपजाऊ बना देंगे वो, फिर क्या करेंगे, उपजाऊ से उनको लगेगा हाँ ये एग्रीकल्चर लैंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, अब हम काम करते हैं उसमें एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, तो वो करते हैं, ठीक है। करने के बाद क्या करते हैं, जब उनका पूरा सोइंग सीज़न, हार्वेस्टिंग सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो फाइनली वो क्रॉप्स को वहाँ से निकाल करके फिर से उस जंगल में आग लगा देते हैं और उसे वहाँ से छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे भी यही प्रक्रिया वो लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते करते वो क्या करते हैं, पूरे लैंड एरिया को एक तो बर्बाद भी कर देते हैं, इनफर्टाइल भी कर देते हैं, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, ठीक है। और ये जो मानना है कि एशिड से फर्टिलिटी वगैरह हो जाएगी सॉइल की, तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि वो सॉइल जो होता है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ करता रहता है ये सारे प्रैक्टिसेस से। कल्टिवेटेड पैचेस, इसको एक और चीज़ से नाम से बोलते हैं, क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल। जो कल्टिवेटेड पैचेस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब कम साइज़ के होते हैं। कल्टिवेशन इज डन विथ वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होल्स, मतलब बहुत ही पुराने तरीक़ों से ये एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम 3 to 5 years सॉइल लूजेज इज फर्टिलिटी। कुछ समय बाद जिस एरिया में, फील्ड में उन्होंने क्रॉप्स ग्रो, पहले तो आग लगाई, फिर उन्होंने ग्रो किया वहाँ पे, जिससे उनको लगा कि हाँ फर्टिलिटी हो गई है। ग्रो करने के बाद वहाँ पे से क्रॉप्स उन्होंने निकाल दिए, फिर उसको वहाँ पे आग लगा दिया, वो दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप यूज़ कर ग्रो करेंगे। ये सब करते करते 3 से 5 साल में जो उस लैंड जो पहले वो छोड़ कर आ गए थे वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ फायरिंग करके, तो वो उसमें क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज़ हो जाती है 3 से 5 साल के बाद, ठीक है। और फार्मर जो होता है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होना ही उनको पड़ता है, दूसरी जगह पे आखिर एक ही जगह पे कितना काम करेंगे वो, ठीक है। फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे, तीसरी जगह पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि सॉइल अब की फर्टिलिटी अब उतनी नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने जला करके सॉइल को ख़त्म कर दिया है। द फार्मर में रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। जो पुराना पैच छोड़ के गया था शायद उस वहाँ पर वापस जा सकता है वो कभी कभी,
अदरवाइज उनके लिए घूमने के लिए काफ़ी जगह है, उनको ऐसा लगता है उनके घूमने के लिए काफ़ी जगह है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ झूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके ये लैंड एरिया भी उनके लिए कम पड़ जाता है, ठीक है। अब ये कितनी जगह जाएंगे, पूरे अर्थ को थोड़ी कवर कर देंगे ये कल्टीवेशन करते करते। नाउ इट इज़ प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स इन डिफरेंट नेम्स। अब इसी स्लैश एंड बर्न एग्री, पहले तो हमने पढ़ा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसका नाम है। अब ये दूसरे एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, मिल्पा बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है, और मैक्सिको में, दोनों जगह बोलते हैं। लद्दाख बोलते हैं इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। ये सारे नाम से याद रखने हैं आपको, नेम याद रखने हैं, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, ओके। दिस टाइप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस पढ़ लिया, अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रोड्यूस इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया। ये ज़्यादातर वैसे एरियाज़ में परफॉर्म किए जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, 2 टाइप के हैं। ये मैंने बताया था कि ये दूसरा टाइप है, लेकिन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ये दूसरा टाइप है, लेकिन इसके भी 2 और टाइप हैं, ये 1.2.1 1.2.2। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। वेट पैडी का मतलब क्या होता है, सिंपल राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज बाई डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप, ठीक है। पैडी का मतलब होता है राइस क्रॉप, तो ये ज़्यादातर राइस कल्टीवेशन के लिए ही किया जाता है। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल होते हैं लैंड होल्डिंग्स ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से लैंड एरिया काफ़ी कम है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड। फार्मर्स जो है जनरली अपने फैमिली मेंबर को ही यूज़ करता है, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे तो खर्च करने नहीं है, तो इसलिए वो अपने फैमिली मेंबर को ही यूज़ करता है, ठीक है। जिससे कि क्या हो सकता है कि लीडिंग टू इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड। इसी वजह से क्या होता है कि एक ही छोटा सा एरिया है, छोटे से साइज़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं। काम 2 लोग ही कर लेंगे, लेकिन 5 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ लिमिटेड, मशीन का काफ़ी कम यूज़ होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर ऑपरेशन मैनुअल लेबर, हाथ से काम किया जाता है। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज़, जो आसपास जो खाद वगैरह बनाया हुआ है उन्होंने नेचुरल तरीके से, वही यूज़ करते हैं। वो कोई ख़रीद के नहीं लाते हैं कि ये केमिकल ये सीड में लगेगा या ये फर्टिलाइज़र हम लेकर के आएंगे खरीद के, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द इल्ड पर यूनिट इज़ हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। इसमें क्या होता है कि इल्ड पर यूनिट इज़ हाई, पर एरिया यूनिट इज़ हाई, मतलब कोई भी एक पर्सन है वहाँ पे काम कर रहा है, या उसको जो भी ऑब्टेन हो रहा है, मतलब अपने फैमिली रिक्वायरमेंट में उनका इल्ड, यानी जो उनको ऑब्टेन हो रहा है, जितने अमाउंट उनको राइस चाहिए वो तो मिल जाता है, तो इस वजह से इल्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई। लेकिन जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो हो जाती है। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी लो क्यों हो जाती है, क्योंकि जितना उनको चाहिए उतना तो उन्हें ऑब्टेन हो रहा है। जैसे 5 किलो उनको चाहिए, तो 5 किलो वो क्या हो रहा है कि ऑब्टेन हो रहा है उस प्लान्ड एरिया से, लेकिन एक पर्सन को कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं तो 5 kg ही हो रहा है, तो अब उसमें 10 लोगों में 5 को डिवाइड करो, हाफ ही kg सबको मिलेंगे, इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी हमेशा लो ही रहती है, ठीक है। नाउ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाई क्रॉप्स अदर देन पैडी। एक तो हो गया राइस जो डोमिनेट कर रहा है, और ये है दूसरे क्रॉप्स अदर देन पैडी। ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ क्लाइमेट सॉइल एंड सम ऑफ द अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मेनी पार्ट्स ऑफ मानसून एशिया। बहुत सारी जगह में राइस कल्टिवेशन सूटेबल नहीं है, तो अदर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को लोग ऑप्ट करते हैं। वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, बार्ले हो गया, शोरगुम हो गया। याद रखना कि ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो उन एरियाज़ में हो रहे हैं जहाँ पे राइस नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से एरियाज़ हैं, जैसे मान लो दे आर ग्रोन इन नदर्न चाइना हो गया, मंचूरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ जापान हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, राइस ग्रो नहीं हो रहे हैं, बल्कि अलग जो वीट, सोयाबीन, बार्ले, ये सारे हैं, वो सारे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीट ही ग्रो होता है, ठीक है। ओके, पार्ट्स ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, ठीक है। तो वीट की क्रॉप्स जो होते हैं वो इंडो गंगेटिक प्लेन, जो हमारी गंगा के आसपास का इलाका है वो, और मिलेट्स वगैरह जो होते हैं जो राजस्थान वगैरह में जॉवर, बाजरा, रागी, ये सारी जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड, ठीक है। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अगर इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में भी देखा जाए तो जो इंटेंसिव है लेकिन अदर दैन पैडी क्रॉप है, तो उसमें मोर और लेस जो टाइप है एग्रीकल्चर के वो सिमिलर ही हैं, ठीक है। लेकिन इरिगेशन, जैसे राइस को कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, इरिगेशन चाहिए, लेकिन देखो मिलेट्स वगैरह को या वीट को अगर कंपेयर किया जाए राइस से, तो उतनी अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज़ ऑफन यूज, मतलब हमेशा यूज़ नहीं होता है, कभी कभी यूज़ कर सकते हैं और कम मात्रा में करेंगे, ठीक है। यूरोपियन कोलोनाइज्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे इंट्रोड्यूस सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सच एज प्लांटेशंस व्हिच वर मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम। जब यूरोपियंस आए थे हमारे इंडिया में, तो आपको पता है यूरोपियंस में खाली ब्रिटिश तो थे नहीं, पोर्तुगीज़ भी थे, फ्रेंच भी थे, ठीक है,
डच भी थे. सो यू फाइंड कि उन सारे लोगों ने क्या किया था, प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया. ये सेकंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का टाइप्स है. हमने पहला खत्म कर लिया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाला. उसके टाइप्स थे 2 और उसके सब टाइप्स थे जो हमने पढ़ा. ठीक है, मतलब उस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी टाइप्स सब टाइप्स थे और उसके भी सब टाइप्स थे. ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है. अब आपको डायरेक्टली इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आएगा ना कि ये सारे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसके फीचर्स बताओ. व्हाट आर दी फीचर्स, राइट एनी 5 फीचर्स, उसके एग्जांपल्स लिखो. ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी. या फिर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्रॉप्स कौन से टाइप का क्रॉप है, क्या प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्रॉप है, ये सारी चीज़ें. प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, अब देखो. दिस इज इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस. यूरोपियंस में खाली ब्रिटिश का नाम याद मत रखना, बहुत सारे लोग हैं. दे कॉलोनी सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स, जो उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई थी, शासन किया था. कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इसे अंडरलाइन कर लो. टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स. दीज आर दी प्लांटेशन एग्रीकल्चर या क्रॉप्स. ठीक है, अब इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, देखो. यहाँ पे लार्ज स्केल और प्लांटेशन यूज है. मतलब कि यहाँ पे जो साइज ऑफ द लैंड एरिया है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा पैसों का यूज़ किया जाता है. मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, यानी कि अच्छे से इनको प्रॉपर पूरा अच्छे तरीके से इनको टॉप टू बॉटम जो होता है एग्रीकल्चर का, वो प्लांटेशन में उनको हेल्पिंग मिलती है. टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें. साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज़ होता है जिससे कि क्रॉप्स सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए. ठीक है, या फिर कोई किसी तरीके से इन्हें कोई डिजीज़ ना हो जाए, इस तरीके से वो मेथड साइंटिफिक तरीके का यूज़ करते हैं. साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है. सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, अगर टी ग्रो हो रहा है तो टी ही होगा, चिली ग्रो हो रहा है तो चिली ही होगा. जैसे चिली तो इसमें वो प्लांटेशन नहीं है. ठीक है, लेकिन कॉफ़ी हो गया या कोकोआ हो गया, रबड़ हो गया, इसे ये सारे प्लांटेशन क्रॉप हो गए. एक टाइप की अगर है तो उस जगह पे एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो हो रहा होगा, उसमें 10 मिक्स नहीं करेंगे वो. ठीक है, चीप लेबर उनको काफ़ी चीप चाहिए. ऑब्वियसली बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे है. चीप लेबर यानी कि लेबर जो है वो काफ़ी कम वेजेस में, सैलरीज में वो काम करने के लिए रेडी है. एंड अ गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सही होना चाहिए. विच लिंक द स्टेट्स टू द फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जिस जगह पे वो क्रॉप्स ग्रो हो रहा है उस जगह से ईजिली मार्केट तक उस सामान को पहुंचाया जा सके, फिनिश्ड प्रोडक्ट को. दैट इज़ द फीचर ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ सेटअप किया, कौन कौन सी यूरोपियन कॉलोनीज़ में, ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे. फ्रेंच इस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका. एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कॉलोनी ने वेस्ट अफ्रीका में कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया, तो अब फ्रेंच करोगे. ब्रिटिश ने सेटअप किया लार्ज टी गार्डन इंडिया एंड श्रीलंका में. रबर प्लांटेशन जो है उन्होंने मलेशिया, एंड शुगर एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़. ठीक है, ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में अपनी प्लांटेशन एग्रीकल्चर फैलाई. ठीक है, पूरा इंडिया से लेकर के वेस्ट इंडीज तक. स्पेनिश एंड अमेरिकन्स इन्वेस्टेड हैविली इन द कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन द फिलीपींस. तो फिलीपींस एक साउथ एशियन कंट्री है. ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने शुगर केन, कोकोनट जो है वो प्लांटेशन इस्टेब्लिश किया. डच लोग जो है उन्होंने, उनकी मोनोपोली थी, यानी कि केवल वही लोग वहाँ पे मौजूद थे एज अ शुगर प्लांटेशन इन इंडोनेशिया में. ठीक है, इंडोनेशिया में डच का काफ़ी ज़्यादा, मतलब वही लोग वहाँ पे थे, अभी और कोई नहीं आया था उस एरिया में. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने शुगर प्लांटेशन इंडोनेशिया में स्टार्ट किया था. सम कॉफ़ी फजेंडाज लार्ज प्लांटेशन. फजेंडाज मतलब क्या होता है कि एक एरिया जो कि लार्ज प्लांटेशन को दर्शाता है. इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज्ड बाय यूरोपियंस. अभी भी हम देखेंगे कि ब्राज़ील में आपको पता है कि कॉफ़ी आर वेरी वेरी मच ग्रोन देयर. ठीक है, इन अ लार्ज अमाउंट. तो इस वजह से अभी भी कुछ यूरोपियंस हैं जो ब्राज़ील में ये कॉफ़ी लार्ज प्लांटेशन जो है मैनेज करते हैं. टुडे ओनरशिप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ प्लांटेशंस हैज़ पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और नेशनल्स ऑफ द कंट्रीज कंसर्न. और आजकल के टाइम पे अगर हम देखेंगे, हमारे इंडिया भी देखेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो किसने कैप्चर कर ली हैं, गवर्नमेंट ने. मतलब कैप्चर क्या की हैं, उनके ही अंडर में ये सारे लैंड एरिया जो हैं वो आते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसे हम करेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. अब ये क्या है, देखो. अब जैसे ही मैंने बोला कमर्शियल, तो कमर्शियल का मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड. ठीक है, ओके. कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड. मिड लैटिट्यूड मतलब 0 से लेकर के 30-40 डिग्री तक नॉर्थ में, और 0 से लेकर 30-40 डिग्री तक साउथ में. यहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में कैरेक्टरिस्टिक है कि वीट यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्रॉप है. वीट ग्रो होता है काफ़ी लार्ज स्केल में. ठीक है, अदर क्रॉप्स जो है कॉर्न हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स हो गया, राई हो गया, ये भी ग्रोन होते हैं. ये जो एग्रीकल्चर का जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है. ठीक है, यानी कि देखो, अगर हमने पिछले इसमें पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के बारे में. इंटेंस सब्सिस्टेंस मतलब तो वो एरिया ही बहुत स्मॉल है. दो उन लोग का टाइप्स था, एक विथ पैडी यानी विथ राइस एंड विदाउट राइस. तो इसमें भी अगर हम वीट का नाम पढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी लार्ज स्केल में नहीं है, एरिया इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स यूज़ हो रही हैं. लेकिन यहाँ वर्ड आ गया एक्सटेंसिव और ऊपर से लिखा है कमर्शियल. तो एक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो लार्ज फार्म इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड. ठीक है,
जो भी इसीलिए बहुत ज़्यादा ये वेरी लार्ज, द साइज ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज, देयरफॉर इंटायर ऑपरेशन ऑफ कल्टिवेशन फ्रॉम प्लकिंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड। मतलब प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग मतलब स्टार्टिंग में जो सीड जो है वो जो बोया जा रहा है वहाँ से लेकर के हार्वेस्टिंग यानी फाइनली जो प्रोडक्ट क्रॉप जो है वो निकाला जा रहा है फील्ड में से, वो पूरी की पूरी क्या होती है, मैकेनाइज्ड होती है, क्योंकि लार्ज एरिया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इंटेंसिव नहीं है ये, एक्सटेंसिव है, ठीक है। नाउ देयर इज़ लो इल्ड पर हेक्टेयर बट हाई इल्ड पर पर्सन, ठीक है, मतलब क्या है, अब देखो इसमें उल्टा हो गया कि देयर इज़ लो इल्ड पर हेक्टेयर, मतलब एक एक हेक्टेयर एकड़ में एक एक एकड़ में एक एक जगह पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे पर पर्सन काफ़ी कम है। जैसे मान लो कि एक 2 एकड़ की लैंड है, वहाँ पे 2 ही पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो इल्ड है, जो ऑब्टेन हो रहा है वहाँ से इनको प्रोडक्ट, क्योंकि 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो काफ़ी कम है, इल्ड है मतलब जो उनको मिल रहा है, लेकिन जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है हाई इल्ड पर पर्सन, लेकिन जो एक एक पर्सन का जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है कि जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था कि इल्ड पर पर्सन इज़ वेरी हाई, ठीक है, इल्ड पर पर्सन इज़ वेरी हाई बट लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। तो मतलब क्या था कि अगर 10 लोग एक जगह पे ही काम कर रहे हैं और 5 kg वो लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक एक पर्सन को हाफ ऑफ ही kg मिलेगा। लेकिन एक्सटेंसिव एक कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन में अगर मान लो कि वो लोग 10 kg ऑफ वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, 10 kg ऑफ वीट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2 ही आदमी काम कर रहे हैं, तो एक एक आदमी को क्या मिलेगा, 5-5 kg का प्रॉफिट मिलेगा। तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे क्या है, लो इल्ड पर हेक्टेयर बट हाई इल्ड पर पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को जो अमाउंट मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम 5 से भी कंपेयर करेंगे तो अगर 5 ही kg की अगर प्रॉफिट उनको हो रही है तो दोनों को 2.5 बटेगा, और ऐसे अगर 10 लोग एक ही ज़मीन पे काम करेंगे तो उनको 5 का आधा करेंगे तो हाफ ऑफ ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हाई इल्ड पर पर्सन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नाउ कॉम्बाइन क्रू एंड केपेबल ऑफ, ओके, सो वाई डज दिस हैपन, अब ये ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, ओके, कॉम्बाइन क्रू एंड केपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग ग्रेन ओवर मैनी हेक्टेयर्स इन अ सिंगल डे, मतलब ये काफ़ी क्या करते हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं कि एक सिंगल डे में काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो कवर कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक ही एरिया ऑफ लैंड के पीछे पड़े हुए हैं, वो काफ़ी एरिया लार्ज स्केल में कवर करते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज़, ठीक है, यूरेशियन स्टेपीज़, ये ऊपर जो मैप है आपके, ठीक है, अबव जो आपके पेज में मैप है उसे ध्यान रखना, ठीक है। यूरेशियन स्टेपीज़, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसे बोला गया है पंपास ऑफ अर्जेंटीना, ये इसका नाम है, ठीक है। ये याद रखना कि जैसे अगर कोई पूछ लिया आपसे कि जो अर्जेंटीना में एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग भी पूछ सकते हैं सिंपली, ज़रूरी नहीं है पूरा स्टेटमेंट वो लोग बोलेंगे एक्सटेंशन फार्मिंग जो होता है अर्जेंटीना में, या कोई साउथ अमेरिका में कोई एक जगह का नाम बताओ जहाँ पे होता है, और वो जहाँ जो उस पर्टिकुलर कंट्री का जिस जगह पे होता है उसका नाम बताओ। तो अर्जेंटीना में होता है, उसको बोलते हैं पम्पास, ठीक है। वहाँ पे एक वीट कल्टिवेशन होती है, उसका एक पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है। पूरा तो अर्जेंटीना नहीं बोल सकते हैं ना, तो जितने एरिया में होता है उसको नाम दिया गया है। वेल्ट्स, वही सही, वेल्ट्स जो है उसमें वो साउथ अमेरिका अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, इधर है डाउन्स, याद रखना साउथ में। एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, ये न्यूजीलैंड वाले एरिया में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है। ये पूरा यूरेशियन स्टेपीज़ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक मिस आउट कर दिया हमने, द कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ठीक है। तो अब यह याद रखना कि हम नॉर्थ अमेरिका में, अच्छा यहाँ पे कैनेडियन और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका का प्रेरीज है। यहीं पे जब नीचे जाएंगे साउथ अमेरिका में तो यहाँ पंपास है अर्जेंटीना का। थोड़ा हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे अफ्रीका पड़ गया यहाँ बीच में, यहाँ वेल्ड्स है साउथ अफ्रीका में। फिर और आगे ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं हम यूरेशियन स्टेपीज़ हैं। स्टेपीज़ और प्रेरीज़ में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, ये प्रेरीज़ है और ये स्टेपीज़ है, ठीक है। उसके बाद और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी है वीट कल्टीवेशन एक्सटेंसिव फार्मिंग, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। और लास्ट में है न्यूजीलैंड कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिक्स्ड फार्मिंग से स्टार्ट करेंगे, ओके।